اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی عزت مآب ماہ رخ مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس جشن کے موقع پر ہاں وائس چانسلر ہیں آپ حضرات کو زیادہ تر معلوم ہی ہے، خواجہ معین الدین چشتی عربی و فارسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور بہت ترقی کی، مولا صحت و سلامتی عطا کریں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شوصف جرولی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا حق سمجھ کے اپنا حق کا استعمال کیا، اور میں شکر گزار ہوں عمار جرولی صاحب کا کہ انہوں نے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے کو مکمل پاتا ہوں کہ مجھ کو 13 رجب میں عمار جرولی صاحب کی صدارت میں مولا علی کے فنکشن میں مہمان خصوصی کیا آپ لوگوں نے اور عزت افزائی کی، اور اس وقت ہمارے آخری امام کے پروگرام میں بھی ہمارے شوصف جرولی صاحب نے ہم کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے یاد کیا۔ ہم شکر گزار ہیں، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر پہلے امام کی سرپرستی مل جائے اور آخری امام کی سرپرستی مل جائے تو پھر اس کے بعد بچتا ہی نہیں ہے کچھ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میرے سامنے ایک خطیب بیٹھے ہیں جن کے سامنے میری زبان خود لڑکھڑا جائے گی، ہمارے عروج الحسن صاحب، اور ہمارے اس وقت کے وہ شعراء جن کا نام آپ نے ابھی لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شعراء ہیں جو پورے ساغر کو ایک گاگر میں بھر دیتے ہیں، پورے سمندر کو ایک کوزے میں سما لیتے ہیں۔ ایسے شاعر ابھی آپ کے سامنے رہیں گے۔ میں بس 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ اگر کبھی اس کے ساتھ ساتھ کبھی مجھے 5 سے 6 برس سے 15 سے 16 برس کے بچوں کے بیچ آپ مجھے موقع دیجئے تو ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ کیسے بچپن کی نیو مضبوط کر کے اور صراط مستقیم اور ثابت قدم رکھتے ہوئے کیسے ترقی کی جاتی ہے، یہ میں ان کے سامنے بتاؤں گا۔ مجھے کبھی اگر ایسا موقع ملا تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی بڑے بزرگ آئیں اپنے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے ضرور لائیں، ورنہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ایک بہت بڑا گیپ ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد اگر ہمارے بچے نہیں آئے اپنے بڑوں کے ساتھ میں۔ اس کے اوپر کیونکہ میں کچھ چیزیں 2 یا 3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک بات کا یہ ذہن ضرور رکھیں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں تو مولا علی نے کس چیز کو سب سے عزیز رکھا؟ مولا علی کے نزدیک سب سے عزیز چیز تھی وہ تھا علم، اور جس کو رسول خدا نے بھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو علی کے دروازے سے آؤ، لیکن کیونکہ ہم بھی اور آپ بھی سب سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سنت رسول کے ساتھ ساتھ سنت علی پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہم سنت علی میں کمزور ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے اس بات کو کہا انا مدینۃ العلم والی بابھا، تو آج میں ایک جملہ کہتا چلا رہا ہوں، کبھی بھی کسی دوسرے کے دکھائے ہوئے آئینے میں اپنی صورت مت دیکھیے، اپنا خود آئینہ خریدیے اور اس میں اپنے آپ کو سامنے رکھیے، تب پتہ چلے گا کہ ویئر وی اسٹینڈ، ہم کہاں پر ہیں اس سماج میں،
हम कहाँ पर हैं इस राज्य में, हम कहाँ पर हैं इस देश में, हम कहाँ पर हैं इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जिसने ये कहा जो पूछना हो पूछ लो, जो पूछना हो पूछ लो जिसने कहा। यानी कि इल्म के सिलसिले में हमारे पहले इमाम से आखिरी इमाम तक और जितने मुसल्ले निकले हैं वो भी हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों से निकले हैं, जिनको चाहे इमाम अबू हनीफा कहिए, हम्बली कहिए, मालिकी कहिए, जो दूसरी कौमों में हैं, लेकिन हम तो बराह रास्त हैं। और हमें बड़े अफसोस की बात है कि हम इल्म में कहाँ पर हैं, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई तंज है, मैंने कितनी सख्तियाँ झेली और इसी रोज़े ने और इसी बयाज ने और मस्जिद की अजान ने हमको कामयाब किया है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझ जैसे मामूली इंसान का कोई नहीं था, ऊपर खुदा था और फर्श पर हमारे अहले बैत के निशानियाँ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने अपनी ज़बान चाट चाट के आज अपने को पहुँचाया। मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैंने देखा कि अब दरगाह और हर जगह पे मेन दहलीज के ऊपर भी अब कालीन रखी जाने लगी है। कालीन मेन दहलीज को न रखें, उनको नहीं मालूम कितने लोग इस रोज़े पर आते हैं, अपनी ज़बान से खाक चाट के चले जाते हैं। आज वहाँ पे ज़बान चाटने के लिए हमें कालीन को उठाना पड़ता है, तब ज़बान छुआना पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि हर इमाम के रोज़े की एक दहलीज को बिल्कुल साफ़ रखिए। कभी कभी लोग अंदर नहीं जाते हैं तो बाहरी दहलीज से ही अपना इल्म लेके चले जाते हैं मौला से। मैं इसलिए कह रहा हूँ इल्म के मसले में ये बात कि आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की अगर इल्मी बात कहें, इल्मी परसेंटेज देखें, लिटरेसी रेट देखें तो 57% है। 57% मुसलमान लिटरेट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ना खुश होइए कि 57% लिटरेट हो जाने का मतलब बहुत हो गया। लिटरेसी रेट एक अलग चीज़ होती है और एजुकेटेड होना एक अलग चीज़ होती है। लिटरेसी रेट उसे कहते हैं कि आप हिंदी का अखबार पढ़ लें, अंग्रेज़ी का हिज्जे लगा के अखबार पढ़ लें, उर्दू का हिज्जे लगा के अखबार पढ़ लें। ये रेट 57 है। थोड़ा सा इससे एक कदम आगे बुलंद कर लें, प्राइमरी और जूनियर तक, ये मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूँ, अहले शिया की नहीं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पहुँचिए तो आपका रेट 16% रह जाता है। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम रसूल खुदा के मानने वाले हैं, जिन्होंने कहा ना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा। और अगर वो नहीं, उन्होंने दीवार फांद के इल्म हासिल किया तो कम से कम हम ही बराह रास्त दरवाजे से मौला अली के ज़रिए इल्म हासिल कर लें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो मैंने कहा कि 8वें तक पहुँचिए तो सिर्फ 16% है। ये गवर्नमेंट के आंकड़ों ने बताया है, जो आपको इससे कम होंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा 2 कदम और ऊपर अपने को एक सीढ़ी लगा लीजिए, जहाँ पे पहुँचेंगे ग्रेजुएशन एंड अबव। ग्रेजुएशन एंड अबव पे जब आप पहुँचेंगे तो आपकी परसेंटेज 2.75% है। यानी कि 3% भी हम पूरे पढ़े लिखे नहीं हैं आज हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर। और उस 3% में हम अपनी जगह खुद तलाश कर लें कि हम उनसे 20% में उनके भी हम 20% हैं। यानी कि इस 3% का भी 5वां हिस्सा कर लिए तो आईने में पता चल जाएगा हम कितने इल्म हासिल कर रहे हैं। इल्म दीन आप लोगों ने हम लोगों की रूह को तो पाक कर दिया उलमा हजरात ने। लेकिन मैं मौला अली का एक अक़वाल जिसको मैंने बचपन से अपनी ज़िंदगी में डाला है, मैं चाहूँगा मेरे छोटे भाई बड़े हमसे बेहतर जानते हैं, मेरे छोटे भाई मेरे दोस्त इस चीज़ को देखें और उससे एक पैगाम ले लें कि मौला अली का एक फ़िक्रा है कि जो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैंने किसी बड़े आलिम से सुना था।
उन्होंने कहा इल्म हासिल ऐसे करो, दुनिया हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना है। उस वक़्त मैं छोटा था, मैं इतना नहीं समझ पा रहा था कि मौला अली कह रहे हैं दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें और भी सुन चुके हैं कि जिसने 40 बार दुनिया को तलाक दे दी हो वो कह रहा है कि दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना। लेकिन दूसरा जुमला जब थोड़ा बड़े हुए तब समझ में उसका आया कि कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ा फ़लसफ़ा उसमें दे दिया हमारे मौला अली ने। पहला जुमला कह दिया दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना है, दूसरा जुमला कह दिया अपना अमल, अपना किरदार ऐसा रखो जैसे अभी जाना है। अगर मैं समझता हूं अगर कोई भी शिया इस फिक्रे को अपनी जिंदगी में उतार लेगा तो मैं समझता हूं वो सीधा का सीधा अपने असली मकसद में कामयाब हो जाएगा। जरा गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप टाट का पर्दा दरवाजे पे रखिए, मामूली ग़िज़ा खाइए, मौला ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा दुनिया को हासिल ऐसे करो। अगर हमें मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है तो उसमें संकोच और उसमें हिचकिचाहट मत करो। तुम्हें कारोबार करना है तो ये ना सोचो कि हम बस मामूली सी दुकान कर लें, बस मेरे लिए बहुत है। इरादा ऐसा रखो कि मेरे पड़ोसी की अगर 4 मंजिला मकान है तो मेरा 5 मंजिला बने। अगर मेरा पड़ोसी ग्रेजुएट है तो हम पोस्ट ग्रेजुएट बने। अगर मेरा पड़ोसी पीएचडी है तो हम उसके आगे जाएं। अगर इस तरीके से अगर हमारे पड़ोस में कोई चपरासी रहता है तो दुआ कीजिए कि मेरा बेटा क्लर्क बने, अगर क्लर्क बैठा है तो और अफसर बने। अगर ये जज्बा रखेंगे तब हम कामयाब होंगे। और दूसरा जुमला जो ये कहा किरदार, कहीं ऐसा ना हो कि मलकुल मौत ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी कि आइए मिर्ज़ा साहब चलिए अब आपका वक्त ख़त्म हो गया। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, मेरी तो सुनेंगे भी नहीं, कि बड़े लोगों की सुनी लेकिन हम लोगों की थोड़ी सुनेंगे, वो तो कब्ज़ कर लेंगे, वो कहेंगे बस चलिए। लेकिन मैं अगर उनसे ये कहूं मुझे ज़रा सा 2 मिनट की मोहलत दे दीजिए, मैंने शौज़फ साहब की कहीं पे ग़ीबत कर दी थी, मैं टेलीफोन करके उनसे माफ़ी मांग लूँ कि माफ़ कीजिएगा मैंने कभी आपका दिल दुखा दिया था। मैंने 35 साल से मेरे पुराने दोस्त अम्मार जरवली साहब हैं मेरे, 35 साल आज हो गए मेरा इनके साथ। मैं ये कहूँ कि नहीं मेरे 10,000 रुपये अम्मार जरवली साहब के एक बार शेरवानी से निकाल लिए थे, मुझे इतनी मोहलत दे दे मलकुल मौत कि या तो मैं माफ़ करा लूँ या मैं उनके 10,000 वापस कर दूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा किरदार ऐसा रखो, अमल ऐसा रखो जैसे अभी जाना है। अभी जाना में बड़ा फ़लसफ़ा, नमाज क़ज़ा ना हुई हो, रोज़ा छुटा ना हो, अहले बैत से मोहब्बत बमारफत की हो। अहले बैत से मोहब्बत बमारफत काम आएगी, खाली मोहब्बत काम नहीं आएगी। हमसे बेहतर हमारे उलमा हज़रात बताएंगे। और बमारफत मोहब्बत तभी आएगी जो मौला ने जिस चीज़ को अजीज़ रखा, यानी इल्म। जब इल्म होगा तभी आप सही मानों में खुद किताब लेके पढ़ेंगे। जो हमारे उलमा हज़रात यहाँ से फरमाएं आप उसकी जाके तहकीक कीजिए। हमारे मौला अली ने यह भी कहा, बड़े अफसोस की बात है जिस जगह सोच लीजिए कि किताबें फुटपाथ पे बिकती हों और जूते शोरूम में बिकते हों, वो समझ लीजिए वो जगह तरक्की बड़ी मुश्किल से कर पाएगी। जिसकी जो जगह है अगर वो उस जगह से हट जाएगी तो अदल नहीं बाकी रहेगा। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों में एक चाहते हैं, आज हम एक समाज के एक हिस्से पे हैं, हमको ये तो बता दिया गया कि कुरान नातिक और कुरान सामित दोनों से मोहब्बत करो। और अल्लाह का शुक्र है कि इससे हम शिया कमज़ोर कहीं नहीं है। हम कुरान नातिक को भी उसी तरह पकड़े हैं और कुरान सामित को भी पकड़े हुए हैं। लेकिन बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस्लाम का नाम सिर्फ 2 ही चीज़ों का नाम है। इस्लाम सिमट के आया है तो 2 चीज़ों में, एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुन्नास। इसके अलावा इस्लाम में कुछ ढूंढते रहिए नहीं है, बस यही है।
हुकूकुल्लाह का मतलब ही हम जानते हैं कि वो खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें खल्क ही नहीं किया है सिवाय इसके कि मेरी इबादत करो। वो तो कह रहा है मैंने इबादत के लिए खल्क किया है, और महरुख मिर्जा हर 2 मिनट के बाद किसी ना किसी की गीबत कर रहे हैं। इसके लिए हमको नहीं कहा है। तो आप ये सोचिए कि इस चीज के लिए, और हुकूकुन्नास में हमसे बेहतर हमारे उलमा जानते हैं कि 40 घर सामने और 40 घर पीछे, 40 घर दाएं और 40 घर बाएं, इसको अमली जिंदगी में लेके आइए। हम 40 घर नहीं जा सकते तो कम से कम 5 घर तो बाजू के देख सकते हैं कि अगर मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे बगल में बच्चा 8वां पास है, तो अगर हमने उसको उंगली पकड़ के थोड़ा इल्म नहीं दिया तो पेशे खुदा सवाल पूछा जाएगा। मुझसे तब नहीं पूछा जाएगा, मुझसे तब नहीं पूछा जाएगा कि मैं 8वां हूं और बगल वाला 12वां क्यों नहीं किया। हाँ, अगर मैं 8वां हूं तो बगल वाला जाहिल नहीं रहना चाहिए, वो 5वां पास होना चाहिए। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं कहूँगा, बात बहुत कुछ है कहने की, लेकिन आज हमें बहुत बड़ा शुक्र अदा करूँगा और मुझे बेपनाह फ़क्र है इस बात का कि मैं अपने शियों में पहली जगह बुलाया गया तो मौला अली के प्रोग्राम में, और आखिर में इस वक्त बुलाया तो अपने आखिरी इमाम की दहलीज के ऊपर। बस मेरे लिए यही बहुत है, हम शुक्रगुजार हैं। और कभी हमारी यूनिवर्सिटी आइए और आकर देखिए, आप देखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। वहाँ उर्दू अरबी फ़ारसी तो नाम है, खाली ये पेपर नहीं है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, और पर्शियन के बच्चे तो कम से कम मदरसों से निकल के वहाँ तक आएँ। शुक्रिया, थैंक यू।